So, hi everyone. We are meeting again for a new episode of Indie Thoughts. So, we have a new guest today, Mr. Sankalp Sharma, and he will talk about a very, very important topic for us, which is cybercrime and cyber theft. So, Sankalp, over to you for your quick introduction, and then we'll go into the detail that what do we do when a cybercrime hits us or when a cyber thief is about to steal our identity or our money. So, over to Sankalp. So, hello everyone. I am working into the cyber security and researching different types of cyber crimes and helping people from last 6 years. And from last 20 years, I was into the technological world and I have seen the changes into the crime from a physical to a online mode. And now we have seen, we have listened word cyber crime everywhere, and we have seen so many victims around us, and most of the time they are feel helpless where to approach, what to do if any kind of cyber crime happened to them. Okay. तो संकल्प आपने देखा है जैसे डेली वी आर गेटिंग इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट स्टार्ट होनी चाहिए डिजिटल मोबाइल पेमेंट्स होनी चाहिए हम लोग का इंटरेक्शन विद इंटरनेट हैज इंक्रीज आज की डेट में वेयर वी आर सीइंग दैट street vendor will be having a Paytm option, and we going to a saloon, they'll have a Paytm option or maybe any other payment gateway option through your mobile. So, do you feel that this is a safe way of interacting with our money and giving it to our vendors, or do you think that cybercrime has actually made us aware that yes, we should be safeguarded against these crimes? So there are two things. Like first, we need to understand the use of the mobile payment gateways. If you are not fully aware with the functioning of the Paytms or other application, I would suggest not go with them. You can use a parallel option of your banking application, which is installed in your mobile, scan and pay, rather than you are installing a third party application, Paytm, Google Pay, and then link your account. So there is, if you are technological aware, then it's good. Else, go with your approach with a banking application. Okay, okay. So And that is what. Yes, yeah, please. and second thing here is that, like, when something goes wrong, right, you again need to approach to your bank Correct. that my cyber fraud has happened. You are looking help from them, so you are not going to Paytm or Google Pay. They will, if Correct. you write to them, practically I have seen, they will ask them reach out to your original branch. Okay. Okay. So you are saying that our main pretext should be to connect with our bank or use our bank application rather than using a third party application, because eventually they are also going to guide you to connect to your bank only. So why not use the bank's application rather than any other? Exactly. Like there is another thing called, like, couple of years back, right? We have not seen, we have seen that we are transferring money through RTGS. Then a concept called IMPS, instant money will be transferred from one bank to another bank. Correct. And in that situation, if crime has happened and any unauthorized transaction happened, both of the banks have an option to stop that payment, freeze that payment. Okay. But as introduction to the UPI is enabled into the market, and like within a seconds you connect your account, within a seconds money will be transferred to another account, and cyber criminals withdraw that amount from their accounts, right? So there are less possibilities to hold that transactions via bank or the cyber police. Okay. So Okay. while using UPI payments, right, you should be extra conscious that whom you are giving the money, right? Scanning somewhere, scanning QR codes. So be extra cautious. Or there is a solution available. Every wallet have a 10,000 limit. Once you Okay. do a KYC, your limit can be increased to 50,000 to 1 lakh. So, Okay. like, if you are a normal customer and you are not a merchant,
you can put a set limit of 10,000 rupees, so Okay. that in case any cyber crime happen to you, right, it will not reach to the level of 10,000 rupees. Okay. Okay. So these are some like basic checks in the UPI payment option you can do. So very Second good thing is, option. yes, and second thing here is that do not save your debit and credit card information in any of the applications like Paytm, the Google Pay. These are the wallets for the money. But Hmm. like, take an example of Airtel. Take an example of the if you book any cab, any bus service, any restaurant service, like Ola, Uber, you are saving your card information. So Correct. sometimes it give you a easiness. मतलब आपको ये बहुत हेल्प करता है कि आपका जो काम है वो इजीली हो सकता है, आपको Hmm. बार बार इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, लेकिन ये कभी कभी इजीनेस ही बहुत खतरनाक होती है। Okay. तो जब भी पेमेंट करें हर बार मैनुअली कार्ड की डिटेल डालें, तो इससे Hmm. आपकी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स के पास जाने से बच सकती है। Hmm. थर्ड थिंग, किसी भी एप्लीकेशन पर जैसे कि हम फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक की बात करें या और किसी एप्लीकेशन की बात करें, मोबाइल इंफॉर्मेशन सेव ना करें। Okay. Okay. So predominantly very important information you have shared. मुझे लगता है कि ये बेसिक्स हैं बिल्कुल जो कि हमारे को अपने डे टू डे आई से साइबर सिक्योरिटी के लिए या फिर अपनी साइबर हेल्थ के लिए वी शुड बी हैविंग दीज 4-5 what you call ideas or guidelines for ourselves before we get into the payment modes. So thank you for sharing that, Sankalp. ऑल्सो संकल्प, अगर हम बेसिक्स की बात करें, बिल्कुल बेसिक से, तो साइबर क्राइम कितने तरीके का होता है और क्या क्या ऐसी एक्टिविटी है जो साइबर क्राइम के अंडर फॉल करती है? साइबर क्राइम को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड्स में आपका बैंक से अगर पैसे कट होते हैं, आपके एटीएम से फ्रॉड आपके साथ होता है, तो इनको हम फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में रखते हैं कि कैटेगरीज जहाँ पैसे लॉस हो गए आप। दूसरी कैटेगरी है आइडेंटिटी फ्रॉड, तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और ज़्यादातर ये चीज़ें फीमेल्स के साथ टारगेटेड ज़्यादा है कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर को वो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इंफॉर्मेशन निकाल के उनको अप्रोच करते हैं, या एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और फिर जो आसपास उनके फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं उनसे पैसे मांगते हैं। तो इसके अलावा भी इसमें और एक्सप्लेन करें, फीमेल्स के लिए कभी कभी रिवेंज लेने के लिए भी फीमेल्स को परेशान किया जाता है, और तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं क्राइम्स। ओके ओके, तो आपने बताया दो तरीके के क्राइम्स, वन इज फाइनेंशियल जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल लॉस हो, एंड सेकंड इज दी डिग्निटी या फिर जो वुमेन के लिए होता है, या फिर मेंटल हरासमेंट या वो वाले जो क्राइम्स होते हैं। तो इनको आपने जैसे फर्स्ट क्वेरी में बताया कि किस तरीके से हम बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके कैसे हम अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे QR कोड्स देख के स्कैन करें, 10,000 की लिमिट बनाए। बट ऑन दी अदर साइड जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो कि आपने बताया नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो क्राइम है, उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको रोकने के लिए सबसे ज्यादा तो आजकल जो एक ग्रुप एक्टिव है एनसीआर में, मेवात हमारे एनसीआर के पास में एक एरिया है, और दूसरा जामताड़ा जो कि झारखंड में आता है। बेसिकली ये दो प्लेसेस इंडिया में साइबर क्रिमिनल्स के आज की डेट में एक गढ़ बन चुके हैं। यहीं से ये लोग फोन करते हैं कस्टमर्स को, और जब आइडेंटिटी फ्रॉड किसी के साथ करना होता है तो ये फेसबुक पर स्टडी करते हैं कि, और जहां पर भी इनको ये मिलता है कि हमारी प्रोफाइल आईडी लॉक नहीं है, या कहीं पे भी इनको मोबाइल नंबर मिल जाता है, या फिर करस्पॉन्डिंग रिसर्च करते हैं लोग कि आपने अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर किस जगह डाला, आपने कोई चीज शॉपिंग करी, आपने कोई चीज फूड ऑर्डर करा, तो ये वहां से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर सबसे पहले अप्रोच जो करेंगे ये व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे। व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे कि हमारे पास आपने लोन लिया है, या किसी भी तरीके से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आपने ये चीज खरीदी थी और हम आपको
तो जैसे ही आपका उनसे कांटेक्ट बात होगा तो फिर वो आपको धमकाएंगे, ये किस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपकी फोटो को हम शेयर कर देंगे न्यूड करके, एडिटिंग करके, हमें इतने पैसे दीजिए। और डिफरेंट तरीके के फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि अभी एक पॉपअप आता है फीमेल के लैपटॉप पर और एक वेबसाइट खुलती है साइबर क्राइम सेल की, और उस पर ये लिखा होता है कि एक्स सेक्शन में आपने पोर्नोग्राफिक कंटेंट लिखा है, इसके लिए अब आप पर पेनल्टी लगाई जा रही है 1450 रुपए। बहुत छोटा अमाउंट उसमें वो मेंशन करते हैं। तो अगर आप फिर फोन आएगा आपको व्हाट्सएप से कि अगर आपने ये पे कर दिया तो ये केस यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। और फिर वो बारी बारी आसपास के मोबाइल नंबर जो उससे कनेक्टेड होते हैं उनको फोन करने शुरू करते हैं। तो उनका एक ही एजेंडा है, जब आइडेंटिटी फ्रॉड उनको आपके साथ करना है, वो आपसे पैसों की उगाही करना चाहते हैं, उनको पैसे चाहिए आपसे। और एक बार आप उनके प्रेशर में आ गए तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों तो उनके प्रेशर में नहीं आए। और सोशल मीडिया आपकी जो भी प्रोफाइल्स हैं उनको लॉक करिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करिए जिसको आप फेस टू फेस ना जाने। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल हम फेसबुक से इंस्टा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। जिसको आप नहीं जानते उसको एज एन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए, और अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को चेक करिए कि उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो उनको आप अनफ्रेंड करिए। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने संकल्प जी। मेरे को भी लगता है कि हमारे को ये ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, इनफैक्ट ये हेल्थ चेक करना चाहिए कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं कि नहीं जानते। मे बी वो किसी और का नाम लेके, किसी और का वो लेके आए हैं, दे आर नॉट आवर रियल फ्रेंड। तो गुड सजेशन संकल्प। अच्छा, मेरे को कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए जहाँ पे आपने देखा है कि कोई आपके क्लाइंट जिनको ऐसा फ्रॉड हुआ है जिनके साथ, और उन्होंने किस तरीके से आपकी हेल्प ली और किस तरीके से लॉ ने उनकी हेल्प करी। कुछ ऐसे एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल फ्रॉड का ही लेता हूँ कि अगर किसी के साथ एटीएम फ्रॉड होता है, बेसिकली एटीएम फ्रॉड में ये है, एटीएम आपके पास है और आपके एटीएम से पैसे कट हो गए, या आप बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और आपने देखा आपका कार्ड फंस गया है, चल नहीं रहा है, और पीछे कोई आदमी खड़ा है और उसने वो आपका पासवर्ड देख लिया और आप अपने घर चले गए और आपके कार्ड की क्लोनिंग हुई। तो इस केस में आपके पैसे अकाउंट से मैंने देखा है कि यूजर्स के पैसे 40,000 रुपए मेरे एक क्लाइंट के कटे। और वो सीनियर सिटीजन थे, बुजुर्ग थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पिन बताई, ऐसा नहीं है कि उनके कार्ड किसी को दिया, उनके पास था। बाद में उन्होंने अपनी कंप्लेंट साइबर सेल में करी, कंसर्न बैंक में करी, और उनके पैसे रिफंड हुए। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपको एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आजकल क्या मैंने चीज देखी है क्लाइंट्स के साथ, कि कोई भी नंबर आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे, किसी कॉल सेंटर सर्विस का, किसी भी सर्विस का, और आपने उस नंबर को डायल किया और उस नंबर पे आपको तो लग रहा है कि आप उसके कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो साइबर क्रिमिनल्स के नंबर हैं। अब वो नंबर क्यों गूगल वेरीफाई नहीं करती है, ये एक क्वेश्चन है गूगल के लिए और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। बट ये एक बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा है कि उन लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, वो अपनी डिटेल्स बता देते हैं उनको, बैंक को, पिन, पासवर्ड्स, और उनके पैसे कट जाते हैं। ये भी साइबर क्राइम में फिर रिपोर्ट होता है और इसके पैसे की भी रिकवरी हो पाती है। अब हम आइडेंटिटी फ्रॉड की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर फीमेल्स को टारगेट किया जाता है डिफरेंट तरीके से, कि आपने लोन लिया है, या चैटिंग फ्रेंड्स, या टिंडर भी एक बहुत वो है कि टिंडर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो ऑफ कर देते हैं, फिर वो बाद में, और मैट्रिमोनियल साइट से टारगेट उनका फीमेल है, वो कैसे भी फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, डर दिखाते हैं और उनसे उनको पैसे चाहिए होते हैं। एक और क्राइम आपने अपने आसपास देखा है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, किसी को बताना भी नहीं चाहते, वो है न्यूड स्कैम्स।
जो लोग अपने मोबाइल पर रील्स और मीम्स देखते हैं, तो कुछ एक थोड़े सेक्सुअली वायलेटेड अग्रेसिव कंटेंट भी आते हैं। तो उनको जब देखते हैं वो लोग, तो कभी कभी उनके व्हाट्सएप पे कॉल आती है और उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं। सामने एक फीमेल होती है जो न्यूड पोजीशन में होती है और कॉल कट जाती है। ये सब कुछ कुछ सेकंड्स में होता है। अब उसके बाद दोबारा आपको एक एडिटिंग करके आपकी और उस वीडियो कॉल की एक क्लिपिंग आपके पास आएगी और आपसे कहा जाएगा कि अब ये शेयर कर दी जाएगी आपके फ्रेंड्स में और पब्लिकली, तो अब आप एक्सटॉर्शन मनी हमको दीजिए। अब इस केस में जो विक्टिम है वो बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि जब हम अपने मोबाइल में कोई चीज देख रहे होते हैं तो वो हमारा बड़ा ही प्राइवेट मोड होता है और हम उसमें, और वैसे भी हम मोबाइल में बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। अब ऐसी घटना हमारे साथ हो जाए तो हम किसको बताएं? पेरेंट्स को बता नहीं सकते, दोस्तों को बता नहीं सकते। तो ऐसे लोग उनके जाल में फंसते हैं और उनको पैसे अगर एक बार वो लोग दे देते हैं तो फिर वो उनको इतना प्रेशर देते हैं बार बार फोन कर करके अलग अलग उससे। तो ऐसे लोगों की भी मैं हेल्प करता हूँ कि उनकी आइडेंटिटी को हम छुपाते हैं, चेहरे को कवर करके उनको हम साइबर सेल में लेके जाते हैं, उनकी कंप्लेंट्स हम लिखवाते हैं और उनकी जो भी उनके साथ घटना हुई है वो साइबर अधिकारी को बताते हैं और फिर उन पे एक्शन लेते हैं कि उस आदमी के साथ जो भी एक्सटॉर्शन मनी है वो वापस आए और दोबारा उसके साथ ऐसा नहीं हो। तो इन ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने रियल टाइम सोसाइटीज के आपको बताए हैं, किसी भी हालत में अगर आपके पास साइबर क्राइम हो रहा है तो चुप ना बैठे, प्लीज स्पीक अप। जी, थैंक यू संकल्प। मेरे को लगता है कि ये एग्जाम्पल काफी रेलेवेंट है और काफी एविडेंट है, दिखाते हैं कि हम कितने गलेबल हैं, कि हमारे को कितनी जल्दी कोई बंदा बेवकूफ बना सकता है और आसानी से या पैसे हमारे से ले सकता है। तो सबसे पहले तो वी हैव टू बी सेफ गार्डेड कि इस तरीके की चीजें हैं, पहला एक्सेप्ट करना उन चीजों को, दूसरा इन चीजों की तरफ अग्रसर होना कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो वी हैव टू बी वोकल इनफ, बाहर आए और उन चीजों को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोसाइटी के साथ। और इसीलिए हम संकल्प चाहते थे कि आप आए हमारे फोरम में और बताएं कि किस तरीके से कोई कनेक्ट कर सकता है कि अगर उसके साथ कोई ऐसा साइबर क्राइम हो रहा है तो क्या ऐसे मीडियम से संकल्प आप सजेस्ट करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है तो दे शुड अप्रोच देम? सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसने एक टोल फ्री नंबर है, पहले वो नंबर जो था आपकी उसको सर्च करके देखते हैं 155260। अब ये चेंज हो गया है और अब ये नंबर है 1930। आई रिपीट 1930। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। आपके साथ 24/7 कभी भी ऐसा होता है कि साइबर क्राइम हुआ है, आप ये नंबर डायल करिए और वहां से आपकी ऑनलाइन जो कंप्लेंट है वो लॉक कर दी जाएगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे या सेम डे जैसे भी टाइमिंग्स अवेलेबल है, आप अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाइए कि मैंने ये कंप्लेंट नंबर दिस लॉक करी है, मेरे साथ ये चीज हुई है। आपके पास जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, उनको लेके जाएं और उनकी प्रिंट आउट्स लेके जाएं जी, और उनको वो एविडेंसेस दें कि मेरे साथ ये घटना घटी है और फिर साइबर सेल उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपको उससे लीगल रेमेडी मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है, उससे भी आप ऑनलाइन लॉगिन करके अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं, अपलोड्स कर सकते हैं जो भी आपके स्नैपशॉट्स हैं। लेकिन फिर भी अगेन दूसरे दिन आपको साइबर सेल में मिलना पड़ेगा और प्रिंट आउट्स लेने पड़ेंगे जो भी एप्लीकेशंस हैं आपकी जिनसे भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और फिर आप नेक्स्ट आपको साइबर सेल गाइड करेगा कि उनको और फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो आपसे और क्या चाहते हैं। तो 3 चीजें जो हमने आज कवर करी अपने कन्वर्सेशन के अंदर, सबसे पहले तो अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, साइबर थेफ्ट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। दूसरी हमने आइडेंटिफाई करी कि किस तरीके से हम अपने आप को फाइनेंशियल थेफ्ट से, और तीसरा किस तरीके से हम अपने आप को नॉन फाइनेंशियल थेफ्ट से अपने आप को हम बचा सकते हैं। और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने बताया कि किस तरीके से हम अपनी कंप्लेंट को और कहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। और संकल्प एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव,
आप क्या कहते हैं कि ये तो देखिए अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, द मोर वी आर गेटिंग इनटू द डिजिटल वर्क स्टेशन, डिजिटल एनवायरनमेंट, बॉट्स आ गए हैं, कितनी चीजें आ गई हैं। तो आप क्या कहते हैं कि हमारे को और क्या करना चाहिए, या अपने अगली पीढ़ी को किस तरीके से अवेयर करना चाहिए कि ये नया तरीका है चोरी का, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? जैसे हम अपने घरों के अंदर ग्रिल लगाते हैं, हम अपने लॉक्स लगाते हैं चोरों से बचने के लिए, फिजिकल थेफ्ट से, तो हम अपने लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे क्या ऐसा प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि हम इन थेफ्ट से बचें? सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसको आज जब से हम डिजिटल मोड में आए हैं भूल गए, क्या रोड पर चलते हुए किसी अनजान आदमी से हम दोस्ती कर लेते हैं? अपने घर की बात बता देते हैं? अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन बताते हैं? नहीं बताते ना। चाहे हम मेल हो चाहे हम फीमेल हो, ये ही फॉर्मूला जो सदियों से चला आ रहा है, हम जब से सोशल मीडिया में आए हैं इसको भूल गए। जी। मैंने जैसे पहले भी कहा, किसी भी अननोन आदमी जिसको आप फेस टू फेस नहीं जानते, उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट अपने उस पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं करें। दूसरी चीज कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आप उस पर शेयर नहीं करें, टेक्स्ट के, इंस्टा हो, आपका यूट्यूब चैनल हो या आपका फेसबुक हो। जी। और तीसरी चीज, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो ही नहीं सकता जब कोई आदमी आपको फोन करेगा, मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ, मैं किसी शॉपिंग एप्लीकेशन कंपनी से बोल रहा हूँ, या मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं किसी और, आपने मुझसे ये कोरियर सर्विस परचेज करी थी, पैकेट देने आया, वो किसी ना किसी जगह से बोल रहा है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। क्या आपने उसको देखा? वो कह रहा है मुझे आपके पैसे रिटर्न करने या मुझे आपसे पैसे लेने, तो कम टू माय होम, मैं आपको यहाँ पर पैसे दूंगा या यहाँ पे मैं आपसे पैसे ले लूंगा। तो पैसे हमें किसी से लेने हैं तो भी उसके हमारे पास ऑथराइज्ड अपने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमको क्यों चाहिए पेटीएम पर और गूगल पे पर पैसे? हमारे बैंक, आप हमें कैश ऑन डिलीवरी कलेक्ट कर रहे हैं तो कैश में रिटर्न कर दीजिए। तो कहते जी कंपनी पॉलिसी नहीं है। कंपनी पॉलिसी नहीं है तो ऐसा है कि ईमेल भेजिए, मैं आपको अपने और मेरे बैंक अकाउंट में आप ये पैसे ट्रांसफर करिए। और आप यकीन मानिए कि जैसे ही आपने उनको ये कहना शुरू करा कि मेरे घर पर आइए, पैसे मेरे दे के जाइए या यहाँ से कलेक्ट करिए, मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बिना मिले आपको नहीं दूंगा, आपने अपने आप को पहले अटेम्प्ट में ही सुरक्षित कर लिया। अब वो आपको दूसरे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि नहीं कंपनी पॉलिसी है और सर आपको पैसा चाहिए, तो वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करने की कोशिश करेगा और आपके दिमाग के साथ खेलेगा, जिससे वो आपसे इंफॉर्मेशन निकाल पाए। तो प्लीज उसके झांसे में मत आइए, कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ना आपका बैंक का एटीएम बंद होता है, ना आपके पैसे, अगर आपने कुछ चीज परचेज करी है और रिटर्न करें तो वो पैसे भी आपके मिल जाएंगे। सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनजान आदमी से बिल्कुल मत डरिए। कोई आपको व्हाट्सएप पे भी कोई कॉल आ जाती है अननोन नंबर की, क्यों पिक कर रहे हैं आप? मत पिक करिए। और कोई व्हाट्सएप पे अननोन मैसेज आता है, सीधे उसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको ब्लॉक एंड रिपोर्ट करिए। जिसको आप जानते नहीं है वो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा। आपको कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, वो आपको सिम से कॉल करेगा और आप उसकी बात सुनिए वो कौन बोल रहा है, फिर भी उससे मिलने की कोशिश करिए। अननोन आदमी मतलब खतरे की घंटी, इस मंत्र को याद कर लीजिए। तो जैसे हमारे पुराने बचपन में हम ऐड देखते थे ना, जहाँ पे एक बच्चा आता था, कहता था माय मदर सेज डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, तो उसी तरीके से है कि मंत्रा वही है, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डोंट शेयर योर डिटेल्स विद स्ट्रेंजर्स। बिल्कुल। Perfect. Thank you, Sankalp ji. Thank you for giving your time today. Really very interactive, very helpful and very knowledgeable information which you have shared. I think हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब हम एक और आपके साथ एक बारी फिर इंटरेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम कुछ उनको टूल्स और ट्रिक्स जो है मार्केट में अवेलेबल, वो कैसे वो यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू संकल्प जी। थैंक यू फॉर टाइम।